So hey guys, welcome to our channel Legal India. We are recording a session with Advocate Viswajit Singh, who is a advocate at High Court Jharkhand. So let's see what we conclude through this conversation. Okay, so let's start. So welcome sir to our session. So sir, Thank you, please Gaurav. introduce you to our audience. Gaurav, I am Advocate Vishwajit Singh, Yes sir. and I am also a teacher. And prior to practicing, I have been teaching the civil services aspirants history. Okay sir. So I have a double interest in law in that Okay way. sir. So as per our topic, sir, what was the condition happened after Ayodhya decision? So our topic was like, what was the effect of Ayodhya dispute and what was it? Like many people don't know what was the Ayodhya dispute basically in detail way, like how the legal matters presented to the courts and how it happens, like what are the conflict between two means means majority of the countries, like two religion have dispute for the land, a particular land, and what was that thing. So let's start with that topic. So, what was the Ayodhya dispute like in legal way or in court manner? What was the dispute? Well, सबसे पहले तो I'll start with कि इस डिस्प्यूट में दो मेजर जजमेंट्स आए थे Yes, sir. and when you talked about कि हम अयोध्या के डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे, इसके जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो आई वेंट थ्रू द जजमेंट्स ऑफ इलाहाबाद, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, Yes, जो sir. लगभग इट इज़ 4,304 पेजेस लॉन्ग. Okay. Yeah. Because legal judgments we have to go through, like there are so many pages and all. Yeah. Yes, so it was a very daunting task. Yes, And sir. उसके बाद में I went through the judgment of Honorable Supreme Court. It was Yes. also more than 1,000 pages long. Yes. Okay. Thank you, sir, for doing this much task for us. Because And I think Gaurav, जैसे जैसे मैं इस पूरे मामले में एज आई स्टार्टेड रीडिंग द जजमेंट्स, yes, sir. आई ऑनेस्टली से दैट एक सेशन में इसकी बात हो पाना बहुत मुश्किल है. जैसे अगर हम अयोध्या के डिस्प्यूट की बात करते हैं तो ये ऊपर से प्लेन जा रहा है. यू एडिट. हाँ. Yes. Yes, sir. Yeah. Noise that. हाँ, यस. तो अगर हम अयोध्या के डिस्प्यूट की बात करते हैं और इसके लीगैलिटी की बात करते हैं तो वी आर नॉट सीइंग द होल प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव. क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आस्था क्या है. व्हाट इज Yeah. फेथ What is the beliefs? एंड Yeah. Why to व्हाट इज pray? बिलीफ. Yeah. सो हमें हमें ये भी बात करना होगा कि बिलीफ के साथ साथ आप भारत को कैसे डिफाइन करते हैं. व्हाट इज इंडिया. Yeah. Yeah. ठीक है. और जो तीसरी बात हमें करनी होगी कि हिंदू धर्म क्या है. Yeah. Because we are talking about Hindu God and yeah. नहीं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन अ मेटाफिजिकल वे, आई एम टॉकिंग इन अ Yeah. लीगल वे. Yeah. क्योंकि जब मैंने ये जजमेंट पढ़ा तो असल में ये 4 सिविल सूट्स हैं विच हैज़ बीन क्लब्ड इनटू वन. Yeah. ठीक है. तो इसमें जो पहला सूट है उसमें दिस इज महंत सुरेश दास. So he has claimed that he is a follower of Sanatan Dharma, Yeah. right? और और राम लला जन्मस्थान को एक जुरिस्टिक पर्सन के रूप में मान्यता मिली है. Yeah. राइट. माने नॉट राम लला बट राम लला जन्मस्थान, Yeah. जन्मस्थली. Yeah. राइट. Right.
तो जब भी हम किसी चीज़ को कानूनी रूप से बात करते हैं तो डेफिनेशंस नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, राइट? तो अच्छा, दूसरी बात, राम, हु ओन्स राम? Yeah. Which part of राम yeah, yeah. हाँ, नहीं, राम Because किसके हैं, है ना? yeah, बिकॉज महंत सुरेश दास वाज वन ऑफ द पार्टी एंड ही क्लेम्ड दैट राम, that Ram Chabootra yeah, was the जन्मस्थली ऑफ राम, राइट? yeah, और इसे बाय फेथ कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये उसकी जन्मस्थली है। तो अगर आप इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करते हैं तो यू आर ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। yeah, आज का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इतना डिटेल्ड डिस्कशन नहीं चाहेगा, yeah. बट Because they just एंटीक्विटी, believe that God exists and they go for नहीं नहीं नहीं, like what? आज का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि इट हैज़ अ मोटिव, Yeah, राइट? और मे बी मैं बहुत सारी बातें क्रिप्टिक वे में बोलूँगा, yeah, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके? yeah, because yeah, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लेट अस स्टार्ट विथ राम, ओके? yeah, वी नो अबाउट राम फ्रॉम रामायण। yeah, रामायण वाल्मीकि का रामायण, yeah, और इसके अलावा भी रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, yeah. In whole India there are different Ramayans. ठीक है? Yeah, लेकिन मैंने मैंने राम की बात, राम के आइडेंटिटी की बात इसलिए उठाई है, एंड प्लीज इसमें मिसअंडरस्टैंड करने वाली कोई बात नहीं है। एक हिंदू होने के नाते राम पे मेरी पूरी आस्था है, लेकिन yeah, अगर मैं एक हिस्टोरियन के रूप में राम के अस्तित्व को खोजने जाऊं तो आई एम परप्लेक्स्ड, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं राम को खोजूं तो कहाँ खोजूं। yeah. Because या if you तो go through the books, you just have to take the different books and different beliefs. Yeah, एग्जैक्टली तो या तो राम इंटरनेशनल है, पैन वर्ल्ड है, yeah, और मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, yeah, या राम एक मिथिकल पर्सन है। yeah, तो राम मिथिकल पर्सन तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन राम का है yeah, वो राम कुछ तो इस स्टोरी में होगा, लेकिन इस स्टोरी को ढूंढना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से इस डिस्प्यूट का निवारण भी है, ठीक है? तो राम किसके हैं, मैंने शुरू में कहा कि राम किसके हैं, तो मैं जैन ट्रेडिशन की बात करता हूँ। जैन ट्रेडिशन में भी राम का वर्णन है, एंड देयर आर एटलीस्ट 6 वेरिएशंस ऑफ द स्टोरी ऑफ रामायण इन जैन ट्रेडिशन। yeah. In only Jain they have 6 variations. यस, जैन ट्रेडिशंस में भी 6 वेरिएशंस हैं, और Yeah, जैन ट्रेडिशन ये कहता है कि सीता जो थी ये रावण की बेटी थी, yeah, एंड जस्ट बिकॉज एक आकाशवाणी हुई थी कि ये जो आपकी पहली संतान है ये आपके कुल के नाश का कारण बनेगी, इसीलिए रावण ने इसको डिसोन कर दिया था, सीता को। yeah, और इस रामायण के इस वर्जन में लक्ष्मण किल्ड रावण, नॉट राम, yeah, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ लक्ष्मण एंड रावण, Lakshman killed Ravan, and both Lakshman and Ravan, they went to hell, and Ram became a Jain ascetic. So मुझे see, I'm not trying to preach history, I'm not trying to preach religion to you, but yeah, मेरा पॉइंट ये है कि 2006 के एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैन्स आर नॉट हिंदूज, yeah, ठीक है? yeah, तो अब इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि राम जैन के भी हैं और राम हिंदूज के भी हैं। yeah, तो कोई भी एक कम्युनिटी राम पे अपना पेटेंट राइट नहीं
कर सकता है कि Yeah. राम हमारे ही हैं। अब दूसरी बात, सनातन धर्म क्या है? बिकॉज महंत सुरेश दास ने अपने आप को सनातनी कहा है। और अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या इंडियन सिविलाइजेशन थी? क्या हम इसको मानते हैं? मानते If हैं? you go to, yeah, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मानिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी सभ्यता है? yeah, if you go to the past, like you just have to follow that because civilization being like that. ओके, लेकिन सिंधु घाटी तो अभी पाकिस्तान में है। Yeah, because if you go to through the nationalism and all that, like, तो 1947 में पाकिस्तान बन गया। yeah, ज्योग्राफिकली वो रीजन जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सभ्यता कहते हैं। yeah, तो सनातन का मतलब होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा हो। yeah, इसका मतलब है कि सनातन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म हो सकता है। yeah, हाँ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता 1700 BC के अराउंड डिक्लाइन पे चला गया, और उसके बाद जो पहली हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी, नागरिक सभ्यता थी, और उसके 1000 साल के बाद में महाजनपद आए, और इस बीच में हम कहते हैं आर्यन आए। yeah, हाँ, आर्य अपनी वैदिक सभ्यता लेके आए। तो क्या वैदिक सभ्यता सनातनी सभ्यता है? ठीक है? yeah, yeah, अब समझ लीजिए, आप बात को समझना बहुत जरूरी है। आज के जो लोग हैं ना, वो आपको गोल गोल घुमाते हैं। yeah. They गोल गोल just go घुमाने की through the जरूरत नहीं है। Hinduism and like Hindu have God like Ram and all. They don't go with, yeah, आपको ना गोल गोल घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को एकदम क्लैरिटी के साथ देखिए। अब देखिए कि जैन के जो ऋषभ देव हैं, उनका उल्लेख ही हैज बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो अगर ऋग्वेद किसी महापुरुष के बारे में उल्लेख कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो आइडियल्स है उसको ऋग्वेद मानता है। ओके, अब हम चलते हैं कि ये महाजनपद आए, और उसके बाद में उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा मगध और हस्तिनापुर वगैरह वगैरह। उनका डिक्लाइन हुआ, बुद्ध आए, जैन आए, और उसके बाद हमारे देश में शक आए, फिर कुषाण आए। ठीक है? और कुषाण के आने के बाद में दोबारा से गुप्त काल में हिंदुइज्म का रिवाइवलिज्म हुआ। हिंदुइज्म रिवाइव किया। उन्होंने अपने आप को सनातन धर्मी कहा। तो जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, ये हमको पहली बार 3rd या 4th सेंचुरी एडी में दिखना चालू होता है। yeah. And we think like we exist from that. तो Yeah, अब हमको सबसे पहले तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि एज ए हिंदू हम कौन है। क्या हम वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैदिक कल्चर में जो प्राइम गॉड है वो तो इंद्र है, yeah, और आप तो यहाँ पे ट्रिनिटी को पूज रहे हैं। और आप अगर ट्रिनिटी को पूज रहे हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आपको 5th सेंचुरी के बाद ही उनकी मूर्तियां बनना चालू हो रही है। अब समझ लीजिए, जिस राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट की बात हो रही है, उसमें यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद 1528 में जब बाबर ने बनाया, उससे पहले विक्रमादित्य ने 1st सेंचुरी एडी में वहां पे एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। yeah, लेकिन मैक्स मुलर का ये मानना है, और हम मैक्स मुलर को इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो हमारे देश के इतिहास को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे, या यूं कह लीजिए ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स। yeah, आज के जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मैक्स मुलर का ये मानना था कि जब ह्यूएन सांग भारत में आए, उस वक्त तक ये लेजेंड है कि राम का एक मंदिर बना था जिसे विक्रमादित्य ने बनाया था, परंतु ह्यूएन सांग जब भारत में आए
तब तक विक्रमादित्य का वो मंदिर टूट चुका था। और वहां पे बुद्धिस्ट और जैन आपको जो विहार थे या मंदिर थे वो बनना चालू हो गए थे। ठीक है। मैक्स मुलर ने टू द साउथ ऑफ द सिटी 3 माउंट्स उन्होंने डिस्कवर किया था। एक कुबेर पर्वत है और 2 और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्वाइट ओवरवेलमिंग, है ना। Yeah. तो बट what Max Muller found was that these mounds, they were nothing but the the uh, the relics of viharas। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो सारा डिस्प्यूट है वो चालू होता है ना। डिस्प्यूट ये है कि महंत सुरेश दास का ये मानना था कि जो 3 डोम का जो स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद में, उसके बाहर जो एक चबूतरा था वहीं राम का जन्म हुआ था। ठीक है। Yes, sir. और इसलिए उनको वहां पे एक सीता रसोई है, एक राम का चबूतरा है, तो इसलिए उनको वहां पे पूजा करने दिया गया। ठीक है। और फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि वहां पे उनको मंदिर बनाने दीजिए। ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। सारी प्रॉब्लम, अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट में के जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि 75 साल के विटनेसेस ने कहा कि हमने जब हम छोटे थे तो हम वहाँ जाते थे और हम पूजा अर्चना करते थे, हम अपने दादा परदादा के साथ जाते थे, तो इसका मतलब है कि ये राम जी की पूजा एंटिक्विटी से होती आ रही है। Yeah. ठीक है। लेकिन समझा जाए इस बात को कि महंत सुरेश दास ने मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी। ठीक है। तो मंदिर जो है, आप जिस जमीन पे बनाइएगा उस जमीन का आपको ओनरशिप भी चाहिए। तो बेसिकली इट वाज अ टाइटल सूट, Yeah, title suit, yeah. राइट। तो Modern वक्फ law, yeah. है ना, इट वाज अ टाइटल सूट। Yeah. तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो 4 सिविल सूट्स थे, जिन 4 सिविल सूट्स जो बेस बना ये अयोध्या का जो डिस्प्यूट का, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज क्या होगी? ओनरशिप ऑफ द लैंड। और ओनरशिप ऑफ द लैंड को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? टाइटल सूट से। Yeah. है? तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक पार्टी है जो ओनरशिप ऑफ द लैंड को के बारे में प्रमाण दे रहा है कि भाई 1528 में बाबर हु बिकेम द एम्पायर ऑफ इंडिया, और ये एक अनडिनाइबल फैक्ट नहीं है, ही बिकेम द एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना। और उन्होंने उस जगह पे अपने कमांडर से मीर, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कमांडर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने अपने कमांडर से ये एक मस्जिद को कमीशन करवाया, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि एज अ एम्पायर इज ही एंटाइटल्ड टू डू दैट और नॉट? क्योंकि अगर आप उसके इस राइट को रिफ्यूट करते हैं, आप बाबर के राइट को रिफ्यूट करते हैं, तो राजा टोडरमल ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए आप उसको रिफ्यूट करते हैं। फिर तो अंग्रेजों ने जो भारत में कानून लाया उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैंने इनिशियली आपसे कहा था कि भारत यानी कि इंडिया या हिंदुस्तान या कुछ भी कह लीजिए, आप इसकी हिस्ट्री कहां से शुरू करते हैं? व्हेन डज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट? कब से आप क्या करते हैं? इट इज नॉट 15th of August, Yeah. इट्स 26th of January 1950। Yeah.
ठीक है। उस समय से भारत एक लीगल अमली जामा पहनकर भारत का उदय होता है। उससे पहले हम हम एक कॉमन कल्चर से बंधे हुए तो थे, बट लीगली इट वाज नॉट इंडिया, इट वाज मेनी कंट्रीज, मेनी Yeah, एस्टेट्स। many states, yeah. ठीक है। Many आज dynasties and all, yeah. मेनी डायनेस्टीज, मेनी Yeah, डायनेस्टीज। yeah. अब सवाल ये पैदा लेता है कि आज इस वक्त क्या हमको रूल कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या धर्मशास्त्र? Yeah, that's more important. Like, if you are feeling like we are constituted by Dhamsas, then you just have to believe that also. Like, many things एग्जैक्टली related to that. है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भारत का उदय, इस बात में तो कोई दो राय नहीं ना है कि भारत का उदय 26 जनवरी 1950 में हुआ। हमें आज़ादी जरूर मिली, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हम भारत को अपना नाम, भारत को अपनी पहचान, ये 1950 में ही मिली। ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो अब, और भारत एक सेक्युलर कंट्री रहा है। भारत ने ये डिसाइड किया कि हम सेक्युलर रहेंगे। तो सेक्युलर कंट्री में आप टाइटल सूट के ऊपर पॉपुलर बिलीफ को नहीं रख सकते हैं। हाँ, because you are following one particular religion for that also. आई बिलीव दैट यू कमिटेड मर्डर, Yeah, सिर्फ इस वजह से आपको फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। yeah. मेरा बिलीफ कोई मायने नहीं रखता है। वी हैव टू लुक इनटू द सर्कमस्टेंसेस, वी हैव टू लुक इनटू द एविडेंसेस एंड ऑल, है ना। अगर विश्वास पे मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा, तो उस पे तो फिर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर तो कोर्ट की क्या जरूरत है। Because और हाँ, बोलिए बोलिए। this also arises like many part of country believe that this masjid or mandir belongs to their god, or this place belong to their god. So they started to tell like I have to go for title shooter now. हाँ, अच्छा, अब देखिए, अब एक बात होता है कि हिस्टोरिकल एरर को आप करेक्ट कर सकते हैं। आप एक हिस्टोरिकल एरर को करेक्ट कर सकते हैं अगर बोथ द पार्टीज आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। Yeah, ठीक है। लेकिन आप एक एंटिक्विटी के एरर को कैसे करेक्ट कीजिएगा? बिकॉज रामायण हमारे रोम रोम में बसा है, बट क्या कोई भी एक स्कॉलर बोल सकता है कि एग्जैक्टली इसी दिन, आज से इतने हजार साल पहले राम पैदा लिए? क्या कोई बोल because for सकता है? that you just have to go for history, like from which book, from where it belongs, and from where it started. Like, एंड द एविडेंस हैज टू बी साइंटिफिक, नो? yeah, So just have to prove and like. let us hit at the base of the whole dispute. One day a person comes up and says that this Chabutra is where Ram was born. Yeah, यहीं पे प्रॉब्लम आ गई। Did he back his claim by any scientific evidence? He said that since times immemorial, since uh, antiquity, he used the word antiquity in other way, this place has been, the people believe that this place is where Ram was born. तो इसका मतलब ये है कि Ram was not born in a jungle or on a chabutra. yeah, If you dig inside a chabutra, you will find the foundation of a mahal in which he was born. yeah. Did you find that? That's the main question. Yeah, तो मैक्स मुलर के कंटेम्पररी थे फूरर, उनके उनके एक्सपर्टीज को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लगाया गया है कि हाँ, कुछ 12 पिलर्स के पिलर्स के अवशेष पाए गए थे और वो पत्थर के बने हुए थे। और फिर भारत के एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे मिस्टर बीबी लाल, तो उनका भी उन्होंने भी क्लेम किया था कि सदर्न साइड ऑफ द बाबरी मस्जिद 12 पिलर्स पाए गए थे। बट बाद के स्कॉलर्स ने उनके इस क्लेम को रिफ्यूट कर दिया।
क्योंकि when he claimed all these things, he did not provide any sketch or photographs or any visual evidence कि हाँ वो 12 पिलर्स पाए गए थे. But just because he claimed that, उस क्लेम पे एक अच्छा खासा बवाल हो गया. तो हमारे पास में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि उस चबूतरे के नीचे महल भी पाए गए होंगे. तो हाँ बिल्कुल, अयोध्या में राम जरूर जन्मे होंगे, बट क्या वहीं जन्मे थे? Yeah, because we are talking about piece of land. एग्जैक्टली तो क्या वहीं जन्मे थे? हैं? और आप केवल 10 लोग आज 10 जनरेशन से लोग वहां पे पूजा कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि राम वहीं जन्मे थे. ये सबसे बड़ी बात है. और आपने आपने जिस प्रकार से एक केस को बिल्डअप किया, तो उस प्रकार से अगर देखें तो आपको तो फिर कुतुब मीनार भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार के बगल में एक हॉल टाइप का बना हुआ है. आप वहाँ पे जाके देखें, जहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए एक शेल्टर बनाया गया था, और उसके जो पिलर्स हैं उसमें आपको लक्ष्मी, सरस्वती, इनके कार्विंग्स आपको दिखेंगे. तो क्या आपको कुतुब मीनार मिल जाना चाहिए? या फिर पीएन ओक ने क्लेम किया कि ताजमहल तेजो महालय है. अगर अगर पूरा का पूरा अगर पूरा का पूरा भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि ये तेजो महालय है, तो पॉपुलर सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ताजमहल Demolition को of Taj Mahal. तेजो महालय बना दिया जाएगा. Yeah. आप समझिए कि इस देखिए, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द जजेस वेर वेरी सगैशियस. उन्होंने वाकई में बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन एक जो मैसेज गया है लोगों में, ये मैसेज बड़ा बहुत ही डिस्टर्बिंग मैसेज गया है. और मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि क्या तेजो महालय बोल देने से वो तेजो महालय बन जाएगा, या बीजेपी में या और भी जो पॉपुलर पब्लिक है वो ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बोलते हैं कि हमारे पास में अस्त्रालय रहा होगा. तो क्या वी विल क्लेम ऑस्ट्रेलिया आल्सो? And like Makkah has a means Hindu god center and all. है ना. तो बने हम ऐसे क्लेम कर लेंगे क्या? क्या मॉडर्न डेमोक्रेसीज में या मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह की बातें चलती हैं? बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर अगर एक हिंदू राष्ट्र है, फर्ज कीजिए कि एक हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र में किसी इस्लाम का बहुत ही पवित्र मोटिव है या कोई प्लेस है, तो हिंदू राष्ट्र उसे अपनी धरोहर समझ के उसको बचाए. आप देखिए कि भारत में जितने भी शक्तिपीठ हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है हिंगलाज. ये पाकिस्तान में है. ठीक है, पाकिस्तान ऑफिशियली कभी भी उसको नहीं तोड़ेगा. हिंगलाज महारानी दुर्गा का एक रूप है वो. तो आज के समय में बॉर्डर्स, अच्छा फर्ज कीजिए कि 1947 में हम लोग एक राष्ट्र नहीं बनते, बल्कि हम लोग 650 राष्ट्र बन जाते. तो उस केस में अयोध्या को कौन क्लेम करता? और अगर मान लीजिए यूपी एक राष्ट्र होता और अगर महाराष्ट्र के लोग हिंदू होते, तो अयोध्या केवल यूपी का हो जाता. हम लोग वीजा लेके महाराष्ट्र से जाते यूपी में उनका दर्शन करने. तो आज के समय में आप उस एंटिक्विटी को लेकर लड़ रहे हैं जिसका क्रोनोलॉजी भी क्लियर नहीं है, प्योर पॉलिटिक्स है. और आज के डेट में गौरव, राम कहाँ जन्म लिए थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. मंदिर has to ये build ज्यादा and एग्जैक्टली ये हमारे लिए, देखिए गौरव, नहीं मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ yes sir. कि आप अयोध्या में एक भव्य मंदिर बना दीजिए, बहुत बड़ा मंदिर बना दीजिए, इतना बड़ा मंदिर बना दीजिए कि ऐसा दुनिया ने कभी देखा ना हो.
लेकिन आप राम के पद चिन्हों पर चल ही नहीं रहे हैं। यू डोंट ओन राम, यू आर यूजिंग राम, आप राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अगर आप अपने आप को राम के धरती का कहते हैं तो वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में आप सबसे नीचे होते, आप दुनिया के सबसे ईमानदार देश होते। आप समझिए इस बात को। और मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जो किसी भी देश में अगर एक मेजॉरिटी में है कोई ग्रुप, तो उसे माइनॉरिटीज के साथ पावर शेयर करना चाहिए। और छोटे बच्चों को बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका सिखाया जाता है। हम किस ओर जा रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? मैं रिलीजन पे, देखिए ये अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन रिलीजन पे भी हम डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि ये इतने डिफरेंट नहीं है ये रिलीजन्स जितना हमको दिखता है। दे आर नॉट डाइवर्जेंट, इवन इस्लाम इज नॉट डाइवर्जेंट विथ सम ऑफ द हिंदू फिलोसफीज। वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करता है। ये डाइवर्जेंस ऑफ व्यू हमने पैदा किया है अपने बेनिफिट्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने बेसिकली बेनिफिट्स के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। बेसिकली पॉलिटिकल। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी सुना है कि एक दो पार्टीज लड़ रहे हैं किसी पीस ऑफ लैंड के लिए, और एक पार्टी जो विन करता है तो कोर्ट दूसरे पार्टी को भी कंपनसेशन में 5 एकड़ जमीन देता है? Yeah, that's not आपने common, like. कॉमन, ये तो एक नया प्रेसिडेंस है। Yeah, हमने व्हाट आर यू गिविंग देम अ कंसोलेशन प्राइज? yeah, just क्या take this piece of land and be silent. क्या टाइटल सूट में या किसी भी प्रकार के सिविल डिस्प्यूट्स में कंसोलेशन प्राइज होता है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये सेल्फ एविडेंट है। और ये एक माने आप बात करते हैं तुष्टिकरण की, एंड बिलीव मी एंड यू मस्ट नो दिस, हम लोगों ने अपने अपने एक्टिविटीज से हिंदू कॉज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। हम लोग झारखंड में हैं। हेमंत सोरेन जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने सरना कोड की स्थापना कर दी। इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। Yeah, ठीक है। इससे पहले एक कंफ्यूजन का स्टेट था। यस, आदिवासी यूज्ड टू, सरना अपने आप को हिंदू ही कहता था, क्योंकि वो भी दुर्गा के या शक्ति के किसी रूप की पूजा करता था। ठीक है। आपके यहाँ अगर आप सिर्फ, ठीक है, 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है, लेकिन हिंदुओं में भी दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, और दलित अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। एटलीस्ट नॉट इन द सेंस दैट द सनातनीज टेल देमसेल्व्स एज the हिंदू। pro-Hindus ये and बात एग्जैक्टली साउथ के जो हिंदूज हैं उनका कलर थोड़ा अलग है। yeah, बंगाल के हिंदूज हैं वो शक्ति उपासक हैं। अब जैसे, अब मैंने आपसे क्या बात कहा, महंत सुरेश दास ने अपने आप को सनातनी कहा, और मैं अपने मित्रों के साथ कभी भी अगर मिलता हूँ तो देश से कि गर्व से कहो कि तुम सनातनी हो, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया सनातनी का मतलब तो समझा दो। क्या सनातनी वैदिक है? तो अगर सनातनी वैदिक है तो उसको विष्णु, शिव और ब्रह्मा की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको तो इंद्र की पूजा करनी चाहिए, yeah, वरुण की, मित्र की पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, मूर्ति उपासना नहीं करनी चाहिए। और अगर हम लोग, हवाई जहाज जा रहा है, और अगर हम लोग उससे भी पीछे जाते हैं तो उससे पीछे तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सनातनी हुए, yeah. है ना? तो आप सनातनी, क्रोनोलॉजिकली सनातनी का डेट कहां से फिक्स करते हैं? Like और political समझिए, parties uses Sanatani and all these term for their benefits. नहीं, Whenever they want, like it's good और for समझ their लीजिए, yeah, मजेदार बात और समझ लीजिए। आर्यंस, आर्य का मतलब तो नोबल होता है, लेकिन चलिए हम मान के चलते हैं कि आर्यंस बाहर से आए। लेट अस अज्यूम कि आर्यंस बाहर से आए, लेकिन जो कुषाण थे जो ईरान से आए, तो कनिष्क के जो पिताजी थे कुजला कपडिसिस, वो तो शिव के भक्त थे।
ठीक है, तो वो तो ईरान से शिव की भक्ति लेके आए भाई। और कनिष्क ने कहा कि नहीं, मैं तो बुद्ध का उपासक बनूंगा। और फिर उनके जो बेटे थे शशांक, वो फिर शिव के उपासक बन गए। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश में ये जो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनना चालू हुई, ये लक्ष्मी जी की या सरस्वती जी की या विष्णु की, ये मूर्तियों का इतिहास क्या है, आपको पता है? Let me know. यस यस, यू Let us मस्ट नो। know. देखिए, आ, हुआ क्या कि कनिष्क वॉज वेरी मच एन्चेंटेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफी, एंड ही wanted टू सी बुद्धा इन पर्सन। वो बुद्ध को शरीर के रूप में देखना चाहते थे कि बुद्ध कैसे दिखते होंगे। ठीक है, और कनिष्क का जो एम्पायर था बहुत बड़ा एम्पायर था। तो उन्होंने ग्रीस से मूर्तिकारों को बुलाया, क्योंकि उस वक्त ग्रीस में मार्बल और पत्थर की मूर्तियों को बनाने की कला महारत उन्होंने हासिल कर ली थी। तो गांधार में उन्होंने वहां से मूर्तिकारों को बुलाया और गांधार में बसाया, जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाना चालू किया। और इन्हीं लोगों से यहाँ के जो लोकल आर्टिशियंस थे, उन्होंने भी मूर्ति बनाना सीखा, और उन्होंने कुषाण के दूसरे कैपिटल मथुरा में उन्होंने मूर्तियां बनाना चालू किया। तो बुद्ध की दो मूर्तियां, दो शैली बहुत प्रचलित है, एक है गांधार स्कूल और दूसरा है मथुरा स्कूल। लेकिन कनिष्क के मरने के बाद बुद्ध के का जो पैटर्निज्म था वो खत्म हो गया। और Yes, गौरव, yes, I can listen you. और उसके बाद में ये जितने भी मूर्तिकार थे ये बेरोजगार हो गए। एंड देन आफ्टर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, these started making the statues of Hindu gods and goddesses। और इस प्रकार से भारत के इतिहास में आपको लक्ष्मी जी या सरस्वती जी या ब्रह्मा या विष्णु या महेश की मूर्तियां दिखना चालू हुई। तो सनातन धर्म को आप कहां से शुरू कीजिएगा? अच्छा, उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म का रिवाइवलिज्म नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि शंकर ने, श्री शंकराचार्य ने अद्वैत और फिर उसके बाद में द्वैत का सिद्धांत दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति कल्ट दिया। तो दरअसल देखा जाए तो आज के जो हिंदूज हैं, जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिंदुइज्म हैं, दे बिलोंग टू द भक्ति कल्ट, नॉट द सनातन कल्ट। आप समझ रहे हैं गौरव? हेलो? Yes, sir, yes, sir. I am देखिए, busy अगर like आप setting up the camera basically. ओके ओके, सो हमें इस डिस्प्यूट को एक सोशियो हिस्टोरिकल एंगल से भी देखना होगा, क्योंकि इस जजमेंट ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है, फिर मथुरा का केस है, और हिंदुस्तान में जितने भी जगहें हैं वो एक मेजॉरिटी की आस्था को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को दे दिए जाने चाहिए। अब सवाल ये पैदा लेता है कि क्या आज का हिंदुस्तानी, आज का इंडियन इस चीज को कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा। और अगर हम फेथ को ही अपना बेस बना लें, तो ये जो हमारे पास में इतने इम्पोर्टेंट लीगल प्रेसिडेंट्स हैं या एक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनका क्या मतलब रह जाता है। सो आई एम a bit worried, but we have to go by the decision, at least for now। मगर इतिहास सबको जज करता है। Yeah, and basically the means present ruling party. देखिए, दे हैव अ नैरोअर वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। आप ये समझ लें कि हिंदुइज्म अगर
ऑल एनकम्पासिंग नहीं होता तो भारत में कभी भी इन्वेजन नहीं होता। ये तो सच बात है। हमारा हमारा जो व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हम क्यों कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम? हम तो पूरे विश्व को अपने संबंधी मानते हैं, अपना अपना परिवार मानते हैं। तो आप हिंदुइज्म के ब्रॉडर व्यू को समझें। खैर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गौरव, Yes. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2023 में 2023 में आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस या रिलीजन? As per we are looking like Russia and that war, I एग्जैक्टली think peace is most important at always. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एकोमोडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्फ्लिक्ट? Accommodation will be like है ना? settle आप down between two parties. Yeah. क्या आप राम के लिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, क्या आप राम के लिए अपने सिर पे गोली खाने को तैयार हैं? देखिए, बोलने में और करने में बहुत फर्क है गौरव, लेकिन क्या आप राम के लिए सर पे गोली खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप राम को इतना परफेक्ट मानते हैं? क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि राम से ज्यादा परफेक्ट कृष्ण थे। राम के पास तो 14 कलाएं ही थी, उनके पास भी 2 कलाओं का दोष था। हाँ, बहुत से मामलों में ही वॉज एन आइडियल, यस ही वॉज एन आइडियल। और जो उन्होंने जो प्रेसिडेंस रखा उसको हिंदू आज भी मानता है। हमारा Basically, common गवर्नेंस people कैसा था? can't like figure out what political party ideology about Hinduism and what's the reality Hinduism be like. What? एग्जैक्टली Yeah. तो अगर हमें आम जनता को, देखिए हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले, है Yeah. ना? हम कोई नहीं है किसी को सिखाने वाले, लेकिन हिंदू धर्म किस तरह से इवॉल्व किया है उसको समझना जरूरी है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में घूमें तो आप एक नई प्रकार की देवी को पाएंगे जिनका जिनका जो उद्गम उदय पिछले 300-400 सालों में हुआ। माँ शीतला, माँ संतोषी। आई रिमेम्बर अबाउट 30 और 40 ईयर्स अगो एक मूवी आई थी माँ संतोषी, और उसके बाद में बहुत सारी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करने लगी थी। और शुक्रवार के दिन आप नॉनवेज तो खाना छोड़ दीजिए, लोग खट्टा भी नहीं खाता था। आप तो नहीं पैदा लिए होंगे, बट आई हैव Yes. सीन दैट स्टेज। अच्छा, Yeah. दूसरी बात देखिए, रिलीजन या धर्म हम जिसे कहते हैं, देखिए धर्म का सही ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है, Yeah. है No. ना? Yeah. Yeah. धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, है ना? और रिलीजन जो है इट इज बिलीफ Belief, इन I अ think. Yeah. गॉड, Particular God. Yeah. है ना? बिलीव इन गॉड, और आप उनको कैसे देखते हैं। तो ये बात जान लीजिए गौरव कि जिस प्रकार से इस धरती पे जीवों का इवोल्यूशन हुआ है उसी प्रकार से बिलीफ का भी इवोल्यूशन हुआ है। और कोई भी रिलीजन अपने आप में सैक्रोसैंक्ट और परफेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल, इजिप्शियन रिलीजन क्या अभी एग्जिस्ट करता है? इजिप्शियंस ने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, और वो ये बिलीव करते थे कि नॉट ओनली सोल बट द बॉडी इटसेल्फ गोज। ममिफिकेशन होता था, Yeah. ठीक है, वो खत्म हो गया। रोमन्स दे हैड देयर ओन बिलीफ सिस्टम। आज भी ज्यूज, जिनको हम गॉड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, उनकी माउंट ओलंपस में ज्यूज की बहुत बड़ी मूर्ति है भाई, मूर्ति थी। तो क्या ज्यूज एक ट्रू हिस्टोरिकल पर्सन बन गए? हरक्यूलिस ने तो पूरे पृथ्वी को अपने कंधे पे उठा लिया था। एंड हरक्यूलिस इज एज रियल टू द ग्रीक्स एज इट इज टू यू एंड मी। द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में हरक्यूलिस ने पिलर्स गाड़ दिए थे ताकि ग्रीक्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस ना करे, क्योंकि धरती फ्लैट थी, वो गिर जाएंगे स्पेस में उस बिलीफ सिस्टम के साथ। एंड टिल रिसेंटली 2019-20 तक वेटिकन ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि इट इज नॉट द अर्थ
but the sun which is at the center of the Yeah. solar system. Solar system. Yeah. बाइबल में आप किसी से पूछिए कि गॉड गॉड मेड द वर्ल्ड इन 7 days, और आप इस आइडिया को क्वेश्चन करते मेडिवल एजेस में, तो इट वाज हियर से, और आपको बीच से काट दिया जाता कि हाउ डेयर यू से दीज थिंग्स अबाउट गॉड. दे बिलीव्ड इन गॉड्स एंड गॉड सिस्टम इन सो स्ट्रांगली. गैलीलियो को 16 साल सिर्फ इसलिए जेल में बिताना पड़ा और पब्लिकली पीसा के सिटीजन से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने गलती से कह दिया था, कोपरनिकन थ्योरी को उन्होंने सब्सटेंशिएट कर दिया था कि इट इज द सन विच इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उस समय का यूनिवर्स में, और पृथ्वी गोल गोल घूमता है. और मॉडर्न टाइम्स में आप देखिए गौरव, हम एक नए रिलीजन को बनता हुआ देख रहे हैं. आप जो साईं बाबा के कल्ट को देखते हैं, व्हाट विल यू कॉल दैट साईं कल्ट? साईं बाबा, ही इज अ मुस्लिम, लिव्स इन अ मंदिर, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट मंदिर इज ब्लैक, जो कि ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजन में अशुभ माना जाता है. और कौन साईं बाबा के दरबार में नहीं जाता? एंड साईं बाबा की मूर्ति की पूजा होती है, या मोती पूजन. या मूर्ति पूजा होती है, और उनका अपना एक भजन का सिस्टम है, इंग्लिश बैंड. आप समझिए, एक नया रिलीजन, ए न्यू रिलीजन इज टेकिंग बर्थ. तो आपको ये समझना होगा गौरव कि क्या मानवता ज्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म जो है ना, उसकी जमीन इतनी ज्यादा पक्की नहीं है. आप अगर इस बात को आत्मसात कर लें, एंड फॉर वंस आप बिलीव कर लें कि इस इतने बड़े गैलेक्सी, इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा गैलेक्सी है, उस छोटे से गैलेक्सी में एक छोटी सी पृथ्वी है, और अभी तक सिर्फ पृथ्वी पे ही मानव पाए गए हैं, तो हम कितने लोनली हैं, और हमको एक दूसरे के साथ की कितनी आवश्यकता है, बस यही समझ लीजिए. और अगर रिलीजन पे बड़े बड़े ज्ञानी जन अगर रिलीजन पे बात करना चाहते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो सच को जानना चाहता है. तो आप क्या करते हैं? आप इतिहास को बदलना चालू कर देते हैं. आप मुगलों को ही अपने टेक्स्ट से निकाल देते हैं. अरे आपका इतिहास अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, यू ओन इट. That's your that's your history. You can't forget about like that. आज आप समझ लीजिए, आप पाकिस्तान की हालत देखिए, कितना मैंने कितनी अजीब सी हालत हो गई है उनकी, कि उन्होंने क्या किया है कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय छन्नी से पत्ती को छान लेते हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान का इतिहास शुरू होता है 10th सेंचुरी से, और जहां जहां मुस्लिम्स आए वही उनका इतिहास है, और हिंदूज उनके इतिहास में नहीं है. जबकि लाहौर में भी हिंदू राजा थे. आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप उसको पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम. आप अपने मिसाइल का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं अपने मिसाइल का नाम? गोरी, मोहम्मद गोरी. अरे मोहम्मद गोरी ने तो पूरे हिंदुस्तान के महाद्वीप पे उसने कुठाराघात किया था, है ना? आप समझ लीजिए, जितने भी इन्वेडर्स थे, उन्होंने केवल 1947 के बाद के हिंदुस्तान पे थोड़ी अटैक किया था, उन्होंने तो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान पे भी अटैक किया था. वो बांग्लादेश जो पोर्शन है उस पर भी अटैक हुआ था. और आप जो है अपने मिसाइल का नाम गोरी रखते हैं, तो वो बेवकूफ है. हम भी तो बेवकूफ बनते जा रहे हैं गौरव, हम भी तो उसी रास्ते पे चल पड़े हैं. आई विल नॉट से कि ये हिंदू फंडामेंटलिज्म है, नॉट येट, बट हम उस रास्ते पे चल चुके हैं. हिंदू, मैं बहुत गर्व से अपने आप को हिंदू कहता हूं, क्योंकि हिंदू का जो आकाश है ना, बहुत बड़ा है गौरव. ये छोटा मोटा आकाश नहीं है. आपको हिंदू धर्म को समझना होगा. आप समझ लीजिए कि बुद्ध भी इसी धरती से पैदा लिए थे, एंड बुद्ध हैज टॉक्ड अबाउट अ फिलॉसफी व्हिच हैज नो प्लेस फॉर गॉड. आप समझ लीजिए, बुद्ध की फिलॉसफी में सब कुछ है, गॉड नहीं है. Not only a specific god, he declared all gods, like the belief god system, like. हाँ, नथिंग. आप अगर जैन फिलॉसफी को देख लें,
तो उसमें गॉड्स आर लोअर टू ह्यूमंस, जिन्होंने अपने त्याग से और तपस्या से वो गॉड से भी ऊपर चले गए, वो जिन बन गए। Yeah. तो रिलीजन जो है, इट हैज अ फ्लिम्सी ग्राउंड। रिलीजन की जमीन इतनी पक्की नहीं है गौरव, समझ गए? इसीलिए रिलीजन के लिए मानवता को त्यागना अच्छी बात नहीं है। और अगर कानून किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए झुकने लग गया तो उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है गौरव। आपने एक टाइटल सूट को क्या बना दिया ये आप समझें। Belief suit, I think. एंड गौरव, इसमें आई विल नॉट ब्लेम, आई विल नॉट ओनली ब्लेम द प्रेजेंट regime but all the regimes which have ruled India since 1947, क्योंकि ये आज की इशू नहीं है। अंग्रेजों ने अपना तड़का लगाया जब उन्होंने ग्रिल के साथ उन्होंने बाबरी मस्जिद को दो भागों में बांट दिया। इनर जो 3 डोम वाला जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था और आउटर कोर्टयार्ड था, ठीक है, वहां से शुरू हुआ। तो आप देखिए कि इस प्रॉब्लम को खराब करने में या एग्रावेट करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी एक समुदाय का हाथ नहीं है, मेनी पीपल। एंड व्हाट डिड यू डू? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने सोचा होगा कि यू वांट टू हैव मंदिर, हैव इट फॉर वंस Yeah. एंड फिनिश ऑफ द होल इशू। Yeah. Yeah. That's आप kind of अगर, happen, like it's हाँ arises आप a new issue. एग्जैक्टली आप मैंने उन्होंने यही सोचा होगा, ऑनरेबल वो तो काफी ज्ञानी है ना, उन्होंने ये सोचा होगा कि भैया आप अपना मंदिर ले लो, अब तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इश्यूज हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें तो आगे Yeah. बढ़ो। Yeah. अब तो एम्प्लॉयमेंट की बात करो, अब तो गरीबी हटाने की बात करो, अब तो धन की बात करो। यू गॉट योर मंदिर ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि Yeah. कोई बच्चा जिद करता है तो ले भैया तो अपना मंदिर ले ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि मुस्लिम पक्षकारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि अगर आप मुस्लिम इस्लाम के फेथ के बेस को देखें तो वो तो आसमान में अपना अपना मुंह उठाएंगे और उनको ईश्वर दिखेगा, क्योंकि ईश्वर का तो कोई रूप नहीं है। दे डोंट नीड एनी बिल्डिंग। इस्लाम को इबादत करने के लिए किसी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में नहीं बंधे हुए हैं। और सच पूछिए ना तो हिंदूज भी, अगर हम वैदिक को सनातनी कहें तो वैदिक रिलीजन भी क्या है, हम अंजुलि में पानी भरे नदी में और सूर्य को अर्घ दे दिए, हो गया हमारे देवता की पूजा। ये तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि नहीं मुझे मंदिर चाहिए और मुझे मस्जिद चाहिए, तो ले भैया तू मंदिर लेके खुश हो जा। मैं इस पूरे डिस्प्यूट को गौरव, जैसे जैसे मैंने अभी बहुत सारी बातें क्रिप्टिक वे में कही, I read, but the informations are quite overwhelming। और लाइन बाय लाइन अगर हम लोग जजमेंट की समीक्षा करें तो आई विल नीड मोर टाइम, आई विल नीड अ वाइडर कैनवस, है ना। लेकिन इतना ही समझ लीजिए कि ये जजमेंट ने मुझे चिंता में डाल दिया, इसने मुझे चिंता में डाल दिया, और चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि the country, the foundation of the country is a legal document, it is not a faith। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली उन रियासतों को भारत का हिस्सा नहीं बनाते तो आज आप 650 से ज्यादा हिंदू देश होते। Yeah. What we call Hindu, we also divided into that part, that amount of parts. Yeah. ठीक है ना, आपके जो महादेव हैं, आप काठमांडू चले जाइए वहां भी महादेव ही हैं, Yeah. ठीक है। तो इसने मुझे चिंता में डाल दिया, क्योंकि ये जो नज़ीर पेश करेगा, ये नज़ीर अच्छी बात, ये अच्छी नज़ीर नहीं है। तो मैं तो अपने जो आज का जो यंग जनरेशन है उसको बस यही बोलूँगा कि पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके कोई और खीर खा जाएगा और आप बुड़बक बन के रह जाइएगा। आपको अपने धर्म को समझना होगा और ये ज़रूरी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है I कि think for common people, we just forgot the conversation. Like
we only fight like on topic of Hindu Muslims and all. We हाँ, don't have real topics like which exist in एग्जैक्टली। real world, like which is the main problem of country as economics and like that. आप देखिए, ये आसान है ना। फेथ पे इलेक्शन लड़ना तो बहुत सस्ता है, Yeah, परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लड़ना मजाक बात है। yeah, हैं? आप बहुत सारे स्कूल बना लीजिए, अगला पार्टी बोलेगा कि भैया तुम स्कूल पढ़ाने के लिए थोड़ी बनाए, उसका जो कमरा था उसमें आप पैसा कमाए, लेकिन वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएगा। yeah, ही विल नेवर टॉक अबाउट हिज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, आप अगर बोलिएगा कि भैया आपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, तो बोलेगा कि हमने अपने सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट पार्टीज को मेंटेनेंस के लिए दिया। तो अगला बोलेगा कि कितने सालों के लिए दिया? 50 सालों के लिए मेंटेनेंस के लिए दिया yeah. जाता है, बेचने 5-5 साल। yeah, आप समझिए ना, आप सोचने की बात है कि भारत का संविधान किसी को गवर्नमेंट भी केवल 5 ही साल के लिए बनाने देता है। क्यों? एक ही बार में 50 साल के लिए गवर्नमेंट बनाने दे दे। फिर वो तो क्यों हर डायनेस्टी हो जाएगा। तो देखिए, देर आर सो मेनी। जनता बेवकूफ नहीं है गौरव, जनता बोलती नहीं है क्योंकि जनता कमजोर है। जनता They're not इकोनॉमिकली, united basically. हाँ, जनता को इकोनॉमिकली कमजोर बना दिया गया है, लेकिन देखती सब है। और ये बात दुनिया के हर निज़ाम को समझना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो है, सच है कि जैसी आवाम वैसा निज़ाम, जैसे लोग होते हैं वैसी ही सरकारें होती हैं, ये बात तो सच है। लेकिन ये भी सच है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस भी हुए हैं। Yeah, because common people awaken like that. और और कॉमन पीपल, दे आर रस्टिक्स। उनको ना ये नहीं पता होता है कि हाउ मच इज एनफ। Yeah, जब वो राइज कर जाएगा तो जो डिप्लोमेटिक्स हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, वो बह जाएंगे। yeah, तो लेट अस नॉट अवेकन द रफ कॉमन पर्सन। yeah. क्योंकि Who just क्योंकि need food and like basic needs. If they fight among that, then बात समझे ना। तो रिलीजन मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मेरे जो राम हैं उसको तुम मुझसे नहीं चुरा सकते हो, yeah, और मुझे मेरे राम को पाने के लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। मेरे राम तो मेरे मन में बसते हैं। हनुमान ने क्या कहा? हनुमान को सीता जी ने मोती की माला दी, और वो हर मोती को देखते और तोड़ तोड़ के फेंक देते। तो सब गुस्सा गया कि भाई सीता माता ने हनुमान को इतना बढ़िया गिफ्ट दिया और आप उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। तो हनुमान ने कहा कि मुझे इसमें मेरे राम नहीं नजर आ रहे हैं। तो सबने कहा कि तो कहाँ है राम? तो बोले मेरे हृदय में है। तो उन्होंने कहा मजाक करते हो, दिखा सकते हो? तो उन्होंने चीर के दिखा दिया। ये इसका एक बहुत सिंबॉलिक अर्थ है गौरव। क्या आपको लगता है कि आप किसी ऐसी धरती पे आपको राम मिल जाएंगे जिसके लिए आपने राम के आइडियल्स को फॉलो नहीं किया है? या इसको आप मैंने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। क्या उस मस्जिद में इबादत करने से आपको खुदा तक वो इबादत पहुंच जाएगी अगर उस मंदिर को किसी मंदिर के नींव पे खड़ा किया गया है? ये इंसान की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो सोचता है कि वो ईश्वर को या अल्लाह को ठग लेगा। क्या ये संभव है गौरव? आपके आपके आप न्यूज़ चैनल्स में कितने ही ज्ञानी, चाहे वो द्विवेदी हों, चाहे चतुर्वेदी हों, चाहे पात्रा हों, कोई भी हो, हुएवर, वो चाहे कितना ही डिस्कशन कर लें, क्या आप ईश्वर को ठग लीजिएगा? या कितने ही ओवैसी ही क्यों ना हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्या हम ईश्वर को ठग लेंगे? बताइए। हम ईश्वर, जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं तो हम एक चीज़ पे बड़ा ध्यान देते हैं, पवित्रता पे, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, है ना? तो क्या ये जो मेजॉरिटेरियन आर्म ट्विस्टिंग है, क्या इससे भगवान खुश हो जाएगा? आप सोचिए ना कि एक धोबी के कहने पे
Dhobi represented a minority, one single person. Ram, even though he loved his wife, he disowned Sita. Just because he said that he was not the king, he was the father of his people. आप देखिए राम ने अपने ही आइडियल्स में माइनॉरिटीज को कितना वैल्यू दिया है। आप रामायण पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते हैं। अरे क्या जरूरत थी उनको उस धोबी के बात को सुनने की? Why did he disown सीता just because एक धोबी ने कह दिया? उनको एक लांछन बर्दाश्त नहीं था। क्या दबी जुबान से अगर किसी की आह निकलती है, कोई कहता है कि ये गलत हुआ, तो राम अपने उस नए घर में रह लेंगे जिसमें लांछन लग गया? बाकी तो समझदार समझ ही जाते हैं। Technically, I think the plot also has some conflict, like the emotional conflict between two religion and majority and minority. देखिए That गौरव गौरव गौरव, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं आपसे सीधी सी बात ये करता हूँ, पुराने हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से देखिए, ओनरशिप ऑफ द लैंड शुरू से जब भी किंगडम हुआ है तो ओनरशिप ऑफ द लैंड की बात हुई है। तो कहा जाता था, पुराने वैदिक काल में कहा जाता था, ऑल लैंड बिलोंग्स टू द किंग, हम उसके टीनेंट्स हैं। तो अगर किंग ने अपना नाम महाराजा से शहंशाह रख लिया सुल्तान या सुल्तान या सुल्तान रख लिया, तो क्या वो थॉट बदल गया? जब बाबर राजा बना तो ऑल लैंड बिलोंग टू बाबर। मॉडर्न टाइम्स में ना, अच्छा मॉडर्न टाइम्स में भी देखिए, हमारे पास हम जितना भी लैंड ओन करते हैं, ऑल लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। तो अगर बाबर, if another country rules the government, the land will transfer to that country or एग्जैक्टली that ruler. आज हम जितना भी लैंड लॉज है हमारा, अंग्रेजों का दिया हुआ है, और अंग्रेजों ने उन लैंड लॉर्ड को, वो लैंड लॉज को मुगलों से लिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम ओनरशिप ऑफ द लैंड जिस लॉ से तय कर रहे हैं, उसी लॉ ने बाबर को हक दिया जब वो राजा था कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कुछ भी बनाए। हाँ, अगर आपको सेंटिमेंट्स थे तो आप बोलते, आप अगली पार्टी से बोलते कि आप प्लीज हमें ये बनाने दें, क्योंकि इसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आप इसको, आपने सेकुलरिज्म की मर्यादा को आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो फंडामेंटल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, सेकुलरिज्म। वी आर सेक्युलर एंड वी आर सेक्युलर सिंस 26 ऑफ जनवरी 1950। तो उसके पहले जो कुछ भी हुआ उसको फ्रीज कर दीजिए, स्टेटस को फ्रीज इट। उस पर कोई भी डिस्प्यूट आए, कोर्ट बोले आई नॉट, वी विल नॉट एंटरटेन। Have a जनमत type of thing and हाँ, just decide by your own. आप अपने से डिसाइड कीजिए, जनमत से डिसाइड कीजिए, लेकिन हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है। आप सोच के देखिए गौरव, कि अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कब से हम माने? मुझे नहीं है जानकारी गौरव, मैं इस मामले में आई एम नॉट वाइज एनफ टू डिसाइड ऑन दिस। लेकिन अगर मान लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में ये बात जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कब से शुरू होता है? तो सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जन्म लिया, उसके बाद ही ना सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट 1947 से पहले के किसी मैटर पे, जो जिसका जड़ एंटिक्विटी में है, जिसकी क्रोनोलॉजी डिसाइडेड नहीं है, आवाज आ रहा है, क्या डिसीजन ले सकता है? आई एम ईगर टू नो। गौरव, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं क्या? Yes, I think good lecture. I think it's a lecture to me because I need such kind of professor like in my college and
that places to learn like this. आई एम Because सॉरी we, गौरव के बिकॉज 5,000 पेजों को मैं 2 दिन में नहीं पढ़ सकता था, बट आई yeah, yeah, ट्राइड yeah. माई लेवल बेस्ट. I लेकिन आई think थिंक I will request you to please give another session about this श्योर because श्योर. yes, sir. और आई वुड रियली लाइक टू टॉक इन टर्म्स ऑफ नेम्स एंड द इवेंट्स एंड करेक्ट Yeah, क्रोनोलॉजीज, जिससे yeah. कि कोई भी इंटेलिजेंट माइंड इसको क्रॉस चेक कर ले. Yes, sir. व्हाट आई एम स्पीकिंग, इसको कोई भी इंटेलिजेंट माइंड क्रॉस चेक कर ले, तब तब बातें ज़्यादा क्लियर होंगी. और हाँ, ये बात मैं आई एम लिविंग दिस लेक्चर विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल का फैशन बन गया है. सनातन धर्म क्या है? Yeah. That sounds so typical, but yeah. What does it mean? What does it mean? What is the definition of Sanatan Because Dharma? if you're not clear, that's okay. But if you're हाँ. clear, that's a difficulty. बिकॉज What do बिकॉज you? Yeah. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि महंत सुरेश दास was the Yeah. follower of Sanatan Dharma. Yeah. So And who is is it some, Sanatani? Yeah. and what is who is a Sanatani? Yeah. हम किसको सनातन माने? देखिए, आज की जो रूलिंग पार्टी है ये सनातन धर्म को आज पिछले 8 साल 10 साल से गा रही है, बहुत पहले से, Yeah. मान लीजिए 50 साल से. बट Yeah. आई एम रियली ईगर टू नो व्हाट इज सनातन धर्म, और सनातन धर्म में हम किन गॉड्स को इंक्लूड करें, किन को एक्सक्लूड करें. क्या Yeah, इंद्र because we are सनातन all धर्म fighting के amongst for gods, not the beliefs, एग्जैक्टली not the एग्जैक्टली. ideologies. हाँ, तो मेरा यही सवाल है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म सनातन धर्म है? Yeah. क्या वैदिक वैदिक धर्म सनातन धर्म है? अगर मान लीजिए वैदिक धर्म से हम सनातन धर्म मानते हैं तो वो सनातन कैसे हो गया? तो सनातन से पहले भी तो सिंधु घाटी का धर्म था. सनातन तो वो होता है ना Yeah. जो सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से इंसान जन्म लिया तब से वो धर्म है. तो व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ सनातन धर्म? सनातन धर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये जानना जरूरी है, नहीं? Because if we go for that path, then we have to go for Pakistan region and have our Everything, yeah everything, have everything. our past like what we have done, So, who we are. so you are a young, inquisitive mind, Gaurav. I leave this question to you. I want you to educate me because I want guys like you who are practicing Hindus to educate me, because मैं एक point के बाद में I am confused. मुझे नहीं पता कि मैं वैदिक रिलीजन को फॉलो करूं या भक्ति कल्ट को फॉलो करूं या द सो कॉल्ड सनातन धर्म को फॉलो करूं, बिकॉज आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड. यू गाइड मी, यू बी माय गाइडिंग लाइट. No, sir, I can't be like that. I will request you to just clear this thought also in our next session if we conduct. श्योर And श्योर I will request you to have that session. श्योर. Okay, sir. So It was conclude nice this talking to session. you, Gaurav. Yeah. Yes, sir. And I hope you enjoyed it. Yes, sir. This is so knowledgeable for me. Like a bunch of books compressed within a video. Thank you, sir. Okay, 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 Gaurav. sir. Bye. Good night. Bye, bye.